جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں جو قانون سازی ہوئی اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور ایک اہم بل جو آج منظور ہوا ہے وہ گھریلو تشدد والا بل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی پروگرام کے اندر ہم نے اس بل کے اوپر ڈسکس کیا تھا، اور پہلے تو اسلام آباد کی حد تک یہ بل تھا، اب یہ منظور ہوا۔ اور یہ سب یہ جو بل جس کی ہم نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی، اور آج پوری اسمبلی نے اس کو منظور کیا ہے، اور اس وقت منظور ہوا جب اپوزیشن واک آؤٹ کر گئی، اور اس کے بعد جو ہے جو بھی ہوا۔ اچھا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بل میں اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا ہے، اس میں ہمارے جماعت اسلامی کے جو سینیٹر تھے، کیا نام ہے ان کا، سینیٹر مشتاق صاحب، انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ آواز اٹھائی تھی۔ یہ 2016 میں یہ پنجاب اسمبلی میں پاس ہوا تھا، اور اس کے بعد سے پنجاب اسمبلی کے بعد ایسے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، کہ نہ کسی کا باپ عمل درآمد کر سکتا ہے، نہ کروایا جا سکتا ہے۔ یعنی پتہ نہیں آسمان میں بیٹھ کے ہم بل بنا۔ اس میں ہے کیا اس بل کی جو اس میں یہ ہے ڈومیسٹک گھروں میں اندر جو تشدد ہوتا ہے۔ اب اس تشدد کی جو ڈیفینیشن اس ڈٹو کاپی ہے یہ پنجاب کے بل کا 2016 کا۔ اس میں جو ڈومیسٹک وائلیشن کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے وہ آپ دیکھیں۔ ڈومیسٹک وائلنس ڈومیسٹک گھریلو تشدد شیل مین آل ایکٹس، وہ تمام کام، فزیکل یعنی ہاتھ سے مارا جائے، ایموشنل جذباتی اذیت دی جائے، جذباتی طور پہ اذیت۔ یہ کیسے ہوتی ہے؟ یہ کون ناپے گا؟ یہ خان صاحب کو نیا پیمانہ نکالیں گے۔ سائیکولوجیکل، مجھے اس نے نفسیاتی طور پہ بہت تشدد زچ کر دیا، سیکسول اینڈ اکنامک، میرا جیب خرچہ بند کر دیا، میرے باپ نے میرا جیب، ابا جی نے بیٹے کا خرچہ بند کر دیا۔ economic abuse committed by a respondent against women, children, vulnerable person or any other person with whom the respondent is or has been in a domestic relationship that causes fear، جس سے خوف پیدا ہوتا ہے، physical اور psychological harm to the aggrieved person۔ اب یہ ہے بیسک، اس کی ایک یہ ہے کہ پی پی سی میں سزا ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جو 3 سال کی، ویسے اس کے اندر میکسیمم اور منیمم 6 مہینے سے کم سزا نہیں ہو سکتی۔ اس میں پھر یہ ہے کہ اس کو رہنے کا حق، یہ وہ پھر وہ کڑا پہننے کا، وہ کڑے والے نکال دیا تھا، لیکن باقی ساری چیزیں۔ یہ بل پاس ہوا اسلام آباد کی حدود تک صرف، باقی تقریباً 2 صوبوں نے اس کو پاس کر لیا، سندھ بھی نہیں پاس کر لیا، پنجاب نے پاس کر لیا۔ خاموش ہے، سب خاموش ہے، کوئی نہیں بولا کسی طور پر۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ 2016 سے پنجاب میں پاس ہوا کوئی شخص شریعت کورٹ میں نہیں گیا کہ قرآن جو ہے مرد کو ایک حق دیتا ہے، وَضْرِبُوهُنَّ، کہ تم اپنی عورت کو ہاتھ سے مار سکتے ہو، نافرمانی۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینیشن کی کہ مسواک یا ایک چادر اور چہرے پہ نہیں، اور نافرمانی بھی بہت شدید قسم کی نافرمانی جس میں بیٹریل شامل ہے۔ دنیا پوری جو ہے اس کو بیٹریل میں کرائم آف پیشن قرار دے کے ختم کر دیتے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے، میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں، ایک ہوتا ہے رول آف دا وائلنس۔ مطلب میں نے شاید اس پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آٹزم جو ہوتی ہے نا، آٹزم میں جو آخری جو ہوتا ہے وہ رول آف وائلنس کہتے ہیں، جو بہت کم استعمال ہوتا ہے لیکن ہوتا ضرور ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں کہ ایک باپ اپنی بچے کو بہت زیادہ پیار سے لاڈ سے بہت، ایک دن تنگ آ کے نا ہی جسٹ سلیپڈ، اور اس کا بچہ بولنا شروع ہو گیا۔ تو ان سے انہوں نے کہا ہے کہ کس موقع پہ، کہاں اور کس وقت، یہ نہیں کہ ہر وقت مارنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک بیٹا باپ جو ہے وہ فار ایگزامپل ایک بچی جو ہے کسی جگہ جانا چاہتی ہے، آپ اس کو روک رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ منور مقدم کا باپ اس کو وہاں جانے سے روک رہا ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا باپ جو ہے مجھے سائیکولوجیکلی ابیوز کرتا ہے، آپ مجھے بتائیں کس کے حق میں فیصلہ دیں گے؟ نور مقدم کے حق میں فیصلہ دیں گے یا باپ کے حق میں؟ یہاں تو یہ کہتے ہو کہ چوکیدار کھڑا ہو تو اگر روک لیتا تو قتل ہونے سے بچ جاتی، وہاں باپ کو یہ حق نہیں دیتے ہو، کیونکہ بیٹی اس گھروں میں نہیں جاتے اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، بیٹا اس جگہ مت جاؤ، اس طرح کی لڑکی نہیں ہے، اس لڑکی سے نہ ملو یا اس لڑکے سے نہ ملو۔ یہاں سائیکولوجیکل، اکنامک، یہ کیا تماشا ہے؟ یہ بل عثمان صاحب یہ شریعت کورٹ کے اندر چیلنج ہو سکتا ہے، اور اگر میں کون کرے گا؟ یہ سارے علماء کرام کی در ہیں، یہ سارے ابھی تو 2 تاریخ کو میں پیش ہو رہا ہوں ٹرانسجینڈر میں، اور ہماری وزارت قانون کی وہ کہتے ہیں کسی نے پیش کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی میں آپ شامل ہوں گے، کسی میں شامل ہوں گے، اور آپ کے ساتھ بھی اور لوگ ہوں گے، اور بھی بہت، اب تو 12-13 ہوں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ علماء کرام اس کو بھی چیلنج کریں گے، اس کو بھی میرا ارادہ ہے کہ اس کو بھی چیلنج کریں، اچھا، اس کو بھی اور پنجاب کے بل کو بھی اور سندھ کے بھی، تینوں۔ لیکن ڈومیسٹک وائلنس کو ہم نے ایک تماشا بنا دیا کہ آپ یعنی آپ سوچیں کہ
जिस तरह से दो चीजें होती हैं साइकोलॉजी के अंदर, एक कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और एक होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। सही है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो होती है कि तुम ये काम करोगे तो तुम्हें ये रिवॉर्ड मिलेगा, अगर तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें पिज़्ज़ा खिला दूंगा, मैं तुम्हें ये कर। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मेरे साथ 2 दिन ना बोलना। अब इस कानून के तहत अगर बाप ये कह देता है बेटी से कि तुम मेरे साथ 2 दिन ना बोलना, वो कहते हैं मुझे इसने साइकोलॉजिकल अजियत दी है, माँ कहती है तुम मेरी शक्ल मत देखना, तो कल खानदान का जो सिस्टम है वहां पर बात कर दिया। और ये आज उस रवा रवी में बिलों में टिकट पास करा दिया। यानी अगर माँ ये कहती है कि तुम जाओ अपने कमरे में, या माँ फॉर एग्जाम्पल बाप और माँ दोनों अपने कमरे में बंद हो जाते हैं, अब बच्चों से नहीं मिलते, तो आप खुद सोचें। अच्छा, ऐसी सूरत हाल में इस्लामी नजरियाती कौंसिल का क्या रोल रह गया? क्या ये बिल वहां पे भेजे, उन्हें कहा भी गया था हम भेजेंगे, उनकी क्या रिकमेंडेशन आई, उसमें अमेंडमेंट्स क्या आई, क्या तब्दीली ये आज 2020 बिल जो है ये उन्होंने इसको, और अब तो इसमें जो मैं नेट से निकाला है तो उसमें एज पास्ड बाय द नेशनल असेंबली लिखा भी जा चुका है। ये देखें, उन्होंने मिनट नहीं लगाया उसमें ना इंटरनेट पे उसको तब्दील करने, उसका स्टेटस बदलने का। यानी आप सोचें कि, और एक और लॉ पास हुआ है उस्मान साहब, वो है कैस्ट्रेशन का लॉ, वो भी कंप्लीटली इस्लाम। अच्छा, इस पे भी मुश्ताक अहमद खान ने रोला डाला जी सर कि भाई रैप के मुल्जिम को एक और फांसी दो। हिटलर जो है ना, हिटलर उसकी फ्राइड ने साइकोएनालिसिस किया था कि ये इतना कातिल क्यों है, तो उसने उसका साइकोएनालिसिस करते हुए बताया था कि ये बंदा जो था ये पैदाइशी तौर पर जिनसी तौर पर माजूर था। अच्छा, और इसकी एक वो कमी थी जो इसको दुनिया से बदला लेने के चक्कर में, आप एक बंदे को, इस्लाम कहता है कत्ल करो, सजा दो, फांसी दो सरेआम। कौन सा इस्लाम में कौन सी ऐसी सजा है जो सरेआम नहीं होती? मात को पत्थर पड़े, मदीने के दरबाजार पड़े, उस औरत को और औरत को जो दोनों बीवी को संसार किया, मदीने से बाहर निकाल के संसार किया। कौन सी इस्लाम की सजा है कोई 4 पर्दों के पीछे होती है ही नहीं कोई। ये चीजें क्यों नहीं उलमा हमारे चैलेंज करते? ये बिल बुझाते खुद, ये कैस्ट्रेशन और भी गलत है, और ये कोई आईनी तरमीम नहीं है। मुश्ताक अहमद खान ने पेश की कि भाई इसको फांसी दो, लेकिन इसके ऊपर शरीयत कोर्ट में जाना चाहिए। एक तो शरीयत कोर्ट पेश है, जो भी हो आप जाएं तो सही, ये बैलेंस। और अगर शरीयत कोर्ट फैसला कर दे तो ये बिल खत्म हो जाता है। असेंबली इसको नहीं, क्योंकि शरीयत कोर्ट इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो अगर फैसला कर दे तो ये गलत है, और ये बिल वाकई गलत है। देखे ना, इस्लाम में बाप को, माँ को जिस किस्म का इख्तियार, आप पूरे का पूरा सिस्टम डबो रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप उसको कहते हैं कि तुम 3 महीने के लिए घर से बाहर, तुम घर नहीं जा सकते, मैं वापस जाऊंगा उस घर में? मैं उस घर में वापस जाऊंगा जिसकी बीवी या बेटी या माँ या कोई और जो कुछ भी है वो मुझे जेल पहुंचा रहा हो, मुझे अदालतों में कटाने हुए? आप कितनी तलाकें करवाना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर? और जबकि आप साहिब हैसियत भी हो। सही है। ये तो नहीं है ना किसी साइकिल की बेटी ने मजदूर रखा हुआ है, तो वो तो अपना वो शादी की वजह किसी मुन्नू की बेटी ने, या किसी अंबानी की बेटी, या किसी टाटा की बेटी ने, या किसी और जो भी वो भी है, किसी सरमायादार की बेटी ने, कोई नहीं अपने नौकर, जो नौकर वोटी हम जो देखते थे फिल्म उस तरह का। ये तो एक बंदा है जो कि अफोर्डेबल है, अफोर्ड कर सकता है मैरिज को, जो मियाँ बीवी को अफोर्ड कर, बच्चों को और बीवी को अफोर्ड कर रहा है, वो कहेगा कि मुझे इस खानदान से लेना देना क्या है? थोड़ी देर के लिए उसको इमोशनल टेंशन तो होगी, लेकिन आपने तो सत्यानाश कर दिया उसका। यानी ये है वो बेसिकली तकलीफ दे बिल। आज कोई, अब देखे, कोई मीडिया वाला नहीं बोल रहा है इसके ऊपर। ये मैं तो इसको लिस्ट को पढ़ के हैरान रह गया, और सिर्फ जब मुझे इस लिस्ट को मैंने पढ़ा है तो मैं हैरान रह गया कि ये बिल भी पास हो गया। और रवा रवी में जो तो हमारे जो है ना हजरत मौलाना किबला जो है वो उसको पास करा के चले गए। और दोस्त साहबा निजी सूद की, अच्छा एक अच्छा बिल में पास भी हुआ है कि उन्होंने जो निजी सूद है ना उसको उन्होंने उसकी ममानत करार दे दी। निजी सूद से मुराद क्या है कि जो गली मोहल्लों में दुकानदार जो सूद देते हैं वो पे कर्जा अथॉरिटी, ऑयल एंड गैस अथॉरिटी, निजी सूद वो उसकी वो करती है। बड़ी लंबी फहरिस्त है, लेकिन ये तमाम जो इजलास हुआ, बहुत से मनाजर देखे, लेकिन 2 मनाजर मैं आपको जो है वो दिखाना चाहूँगा। एक तो आमिर लियाकत साहब से शुरू करते हैं। आमिर लियाकत साहब बड़े नाराज़ थे पीटीआई से पिछले दिनों, और बड़ा इस्तीफ़े की भी उन्होंने कहा कि जी इस्तीफ़ा भी दे सकते, लेकिन आज इजलास में आए तो एक साफ़ी ने पूछा कि खैर है आप तो आ नहीं रहे थे, क्या जवाब दिया वो भी ज़रा सुन। आप ये बताएं डॉक्टर साहब कि आप खुद चलकर आ गए, आपके तो बड़े गिले शिकवे थे। जी हम आए नहीं, लाए गए और बहुत एहतमाम से लाए गए। और सर कौन लाया आपको? सर लाया कौन है? लाते हुए लाए। अच्छा, जो सर
चले जी, आए नहीं लाए गए हैं, जाहिर है कोई लाता ही है। चीफ वाइफ कच्चे साहब धागे- आमिर डोगर साहब बड़ा उन्होंने मेहनत की है कच्चे इनके ऊपर। धागे से बंधी आएगी सरकार मेरी। अच्छा जी। सर ये कौन लोग हैं कि जिन जो लाते खींचे चले और आप आते बड़े प्यार से आ भी खींचे जाते चले आते हैं, खींचे चले आते खींचे चले आते हैं, मोहब्बत है ना जी। जाते हैं। अच्छा, एक दूसरा जी फेक न्यूज़ का बड़ा चर्चा है और हुकूमत कहती है कि जी मीडिया ये तो फेक बहुत न्यूज़, ज्यादा फेक है, ये न्यूज़, बहुत फेक ज्यादा न्यूज़। और आज हुकूमत ने खुद जो सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं फेक न्यूज़ का, खुद फेक न्यूज़ चलवाई, रिपोर्टर्स को टिकर दिए कि वज़ीर आज़म साहब खिताब करेंगे आज, और वज़ीर आज़म साहब ने खिताब नहीं किया। शहबाज गिल साहब, डॉक्टर साहब आप भी देख लें, फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, साथ खड़े थे। क्या कहा शहबाज गिल साहब ने? ये क्या फेक न्यूज़ नहीं है शहबाज गिल साहब, आप खुद फैला रहे हैं? सुनाए जरा। मैं सिर्फ एक बात कर दूं, वो शरारत पता नहीं इनकी थी, माजरत चाहता हूं आपसे, आप अंदर थे, आपकी इजाजत के बगैर वो शरारत की। वो अपोजिशन सारी बाहर जा रही थी, मैंने कहा मेला नहीं लगेगा, तो इनके थ्रू एक टिकर चलवा दिया कि प्राइम मिनिस्टर शायद आज तकरीर करेंगे। वो सारे वापस आके बैठ गए कि हम हल्ला गुल्ला कर, तो अभी तक बेचारे बैठे हुए हैं। तो हमारी गुजारिश है कि चले जाएं तक। ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे ये फाइनल ओवर खेलने वाले थे 92 वाला। नहीं तो लोगों ने देखना था उनको। हाँ, हैं? उन्होंने कहा जी अपोजिशन के सामने उन्होंने कोई तकरीर फरमानी थी, हाँ। लेकिन तो opposition तो चली गई थी अपोजिशन वापस आ गई। नहीं, उन्होंने कहा जी मैंने टिकर चलवा दिया। अच्छा, अब वापस आ शरारत की, अपोजिशन वापस आ गई कि जी वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं। अच्छा अच्छा तो ठीक। क्या ये फेक न्यूज़ नहीं हाँ है? जी फेक न्यूज़ है, यही और तो खुद जिम्मेदारान फैला रहे हैं। यही तो फेल किया। अच्छा बहरहाल सर उस्मान साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इसमें, ये मैं लिस्ट आपके सामने गिनता जाता हूँ, आप मुझे ये बताइए लंबी लिस्ट है, कि ये गिनते इतनी गिनते जो है बड़ी ना, जो सुबह हो जाएगी। कानून साजी हुई है, इस कानून साजी में 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक तो पहली बात तो ये है कि 3 साल इमरान खान हुकूमत वॉज नॉट कैपेबल ऑफ पासिंग एनी बिल। वो यहाँ से असेंबली से पास करते थे, सेनेट में जाकर रुक जाता था, पास करते थे, फिर सेनेट में जाकर रुक जाता था। ये सारे जो है गुज़श्ता दिनों की उनकी कारस्तानी करते जाए कि ये बिलें इसको। उसके बाद वो होता यह है कि अगर वो 90 डेज के अंदर सेनेट में दोबारा पास ना हो तो फिर होता यह है कि वो इसको हाउस में ले आते हैं। तो ये सारे के सारे बिल जो हैं वो सारे प्रोसेस से गुजर चुके हुए हैं। सही। अब असल मसला यह है कि इस वक्त जो शोर मचा है और जो सारी की सारी गुफ्तगू हुई है अपोजिशन की, मुझे बड़ी तकलीफ इस बात पे होती है कि गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो, ना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो रही है इस मुल्क के अंदर। यानी इस बिल के ऊपर, घरेलू तशद्दुद के ऊपर क्या अपोजिशन ने कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया? क्या इलेक्ट्रॉनिक, आप अपोजिशन से पूछो कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का बिल, वो कहेंगे जी इलेक्शन कमीशन। भाई इलेक्शन तुम्हारी क्या मसला है? तुम्हारी कोई है? वो कहते इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने आज आके उनको कह दिया कि भाईजान बिल बन गया हमारा, तो हम तो उधर सबॉर्डिनेट करेंगे, अमल करेंगे। तो आपकी तो हैसियत खत्म होगी। इसी तरह ये सारे के सारे जो हैं ये कहते रहे कि जी वोट तो बहुत अच्छी बात है और ओवरसीज पाकिस्तानी को देना चाहिए, बड़े कमाल के लोग हैं, लेकिन बिल के वक्त किसी किस्म की, यानी पाकिस्तान के अंदर फ्रिक्शन लेवल इस सतह का आ चुका हुआ है कि अपोजिशन अच्छी बात करे तब भी बुरी है गवर्नमेंट करने, और गवर्नमेंट भी अच्छी बात करे तब भी बुरी अपोजिशन करने। ये बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है। आज जो रवैया, जो सारा कुछ इसके अंदर हुआ, इसमें इस मुल्क के अवाम का नुकसान है। अब देखिए इस रवा रवी में ऐसे ऐसे बिल पास हो गया, अब मुझे तो पता ही नहीं कि ये तरमीमी बिल जो आया है इसके अंदर अपना उसका वो कौन सा बिल है, अपना फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो बिल है, ये क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद का बिल है। IMF के कई मुतालबात इस बिल के जरिए IMF का जो है स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी वाला बड़ा मुतालबा था। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी को शुरू किया था मुशर्रफ ने IMF के कहने के ऊपर। लेकिन शौकत अजीज की तारीफ करनी पड़ती है, बेशक मुशर्रफ की करो ना करो, लेकिन तो वो मैं भी नहीं करता, लेकिन शौकत अजीज ने कान से पकड़ के IMF को निकाल दिया था, क्योंकि मुशर्रफ डॉलरों की बरसात थी हमारे ऊपर, और ये साहब नहीं, डॉलर की बात तो हर दफा रही है, अफगानिस्तान की लेकिन जान IMF जा नहीं रही निकला था। IMF नहीं निकला था, हर दफा 1979 से चली आ रही। IMF को उसने से निकाल दिया था कि वो कहता होता था आई एम ए बैंकर, मुझे पता होता था कि 30 जून को या 31 दिसंबर को पैसे कैसे जमा करने, और मैं कर लेता था। वो फाइनेंस में भी था, बाकी जगह ठीक था, लेकिन उसके बाद दोबारा रिवर्सल हो गई। लेकिन असल मसला ये है कि इसके अंदर नेशनल वोकेशनल ट्रेन, मुस्लिम फैमिली लॉ पाकिस्तान, इसकी क्या तब्दीली आई मुझे नहीं समझ आती। कल तक काफी सारी डिटेल्स आ जाएंगी इंशाल्लाह, कल जो डिटेल्स आएंगी इसमें हम बात करेंगे। और कौन कौन से ऐसे कवानीन हैं कि जो, क्योंकि ये बिल जो हमने इस पे बात की हुई थी, बात बच्चों के तशद्दुद का मारनी प्यार, ये तो खैर बहुत अरसे से अच्छा, फूड सेफ्टी बिल है, अच्छा इस्लामाबाद में फूड अथॉरिटी बनेगी, वालिदैन और बुजुर्ग शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ का बिल है, ये सारे हैं इस्लामाबाद, ये सारे इस्लामाबाद के हैं बेसिकली, क्योंकि इस्लामाबाद के लिए फेडरल गवर्नमेंट के कारण
बाकी सारे, लेकिन कंपनी तरमीमी आर्डिनेंस जो है, नेशनल शिपिंग का बिल है, ये सारे जितने भी हैं ये अब कल पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है। लेकिन बेसिक 3-4 कानूनों में से 2 कानून तो बहरहाल किसी हद तक ठीक हैं, लेकिन ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का बिल है ये अब एक यूनिफॉर्म बिल हो गया पूरे मुल्क का। पहले ये एक सूबे तक महदूद था, अब ये पाकिस्तान का बिल हो गया। इसका मतलब ये है कि कोई कुछ करे ना करे, अमल हो ना हो, लेकिन अगर कोई बीवी या औलाद किसी आदमी को घसीटना चाहे तो वो घसीट सकती है। और अगर कोई इवन औलाद अब माँ के खिलाफ को जाना चाहे, देखें जी क्या करते हैं। और जो उलमा इकराम है इस मामले पर क्या अपना किरदार अदा करते हैं, और पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं। अब चलिए नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह नए मौज़ूआत के साथ कुछ नए जो बिलों की तफसीलात भी आ जाएंगे। कल फिर बात करेंगे इन इश्यूज़ के ऊपर। अपना ख्याल रखिएगा।